Hello, welcome students to my YouTube channel. And if you have not subscribed till now, then please subscribe and share for the new updates. Okay, so let's start in this video, and we are going to start. We are going to study chapter 9, that is our homes. And what is our homes? Where we live, that is the home. So let's start. Okay. I love my home very much. Why I love my home? So that what is the reason that I love my home very much? And it gives shelter to my family. It protects us from rain, wind, cold, and the heat of the sun. It also protects us from thieves. So these are the reasons why I love my home very much. मेरा घर को, ये जो घर है, मैं क्यों पसंद करता हूँ? आई लाइक एंड लव माई होम दैट फॉर इट गिव शेल्टर. हमें क्या देता है? शेल्टर देता है, आश्रय देता है टू माई फैमिली मेम्बर्स. एवरी वन लिव्स हियर इन द होम. एंड देन इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम, जो हम लोग को किससे प्रोटेक्ट करता है? रेन, विंड, कोल्ड और हीट ऑफ द सन. ये सबसे हम लोग को सुरक्षा देता है या फिर प्रोटेक्ट करता है. ओके, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स. जो थीव्स होते हैं रात में चोरी करने आ जाते हैं, अगर हमारे घर नहीं होता तो सब चोरी हो जाता. सो दैट इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स. इनसे भी हम लोग को प्रोटेक्ट करता है. सो दैट दिस इज द रीज़न. सो आप लोग को समझ में आ गया हुआ स्टूडेंट्स कि क्यों हम लोग को घर को पसंद करते हैं और क्या बेनिफिट होता है घर से, इससे हम लोग को बेनिफिट से रिलेटेड क्वेश्चन भी है. ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे इसमें चैप्टर में टाइप्स ऑफ होम्स. कितने टाइप्स के होम्स होते हैं एंड वाई फॉर पीपल लिव इन डिफरेंट हाउसेस. ये जो टाइप्स क्यों होता है इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. टाइप्स ऑफ होम्स. And Sambhavi lives in a bungalow with her parents in Assam, and it has a living room, kitchen, guest room, study, balcony, storeroom, and garage on the ground floor. And the bedrooms and bathrooms are on the first floor. And the bungalow has beautiful lawns and a kitchen garden at the back. So that whatever we study in this paragraph is where Shambhavi lives, and she lives in Shambhavi lives in bungalow, in a bungalow with her parents in Assam. आसाम में बंगलो, एक बंगलो पे वो रहती है. ठीक है. एंड इस बंगलो में क्या क्या है? इट इज़ ए लिविंग रूम. एक लिविंग रूम है, किचन है, गेस्ट हाउस है, स्टडी, बालकोनी, स्टोर रूम, गैरेज, ये सब कुछ इसमें है. ओके, ये गैरेज का है ग्राउंड फ्लोर पे है. ओके, द बेडरूम एंड बाथरूम आर ऑन द फर्स्ट फ्लोर. ये सब फर्स्ट फ्लोर पे क्या क्या है? बेडरूम एंड बाथरूम है फर्स्ट फ्लोर पे. एंड द बंगलो हैज़ ब्यूटीफुल लॉन. इसका एक बहुत अच्छा लॉन भी है. सामने में आप लोग देख रहे हैं कि ये लॉन्स है. एंड a kitchen garden at the back. Today the school is closed. Why the school is closed today? And it has been raining heavily for last 1 week. So far as it has been raining heavily for last 1 week. Last 1 week से पानी गिर रहा हुआ. It has been raining heavily, so that the school is closed. Sambhavi is playing, so that, and while she is doing, Sambhavi is playing snakes and ladder with her brother Ranveer in the balcony. उनका भाई रणवीर के साथ वो क्या कर रही है? स्नैक्स एंड लेडर खेल रही है. वेयर? इन द बालकोनी. एंड हर पेरेंट्स आर reading the newspaper and enjoying tea. Okay, their parents are also busy inside the room, as they are not able to go outside due to the heavy rain, so they all are enjoying inside. Then Sambhavi's cousin, उनका जो कज़न है माला, एंड सी लिव्स इन मुंबई. माला कहाँ रहती है? इन मुंबई. एंड वेयर? एंड इन एन अपार्टमेंट, दैट इज फ्लैट, इज नॉन एज द फ्लैट. अपार्टमेंट पे रहती है. एंड विच इज इन ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है. दीज आर नॉन एज द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, and these are found, especially we get all these buildings, you could find it in the metros. Okay, and the flat has only two small rooms. They have only two small rooms, and the tiny balcony is used as a study. There is no study room, so that they use the balcony. The छोटा सा जो balcony है उसको एक study room हिसाब से यूज करते हैं, वहाँ बैठ के पढ़ते हैं. ठीक है. and the kitchen is so small, बहुत छोटा है, that only one person can work there.
किचन इतना छोटा है कि वहाँ ओनली 1 पर्सन रहता है। सो यहाँ क्या कंपेयर किया गया है, सो माविका ये जो है एक बंगलो पे रहती है एंड यहाँ उसके जो कजन्स है माला वो रहती है मुंबई पे। सो दिस इज द डिफरेंट एंड दे लिव इन असम and they live in Mumbai. So the difference is this is the different. So in the next page and I will clarify why for the things are here so small, the houses are so small, or the why for they live in multi-story buildings. And so in big cities like Delhi, Mumbai, Chennai, Calcutta, the land is limited. The land is limited. The population is huge. मेन प्रॉब्लम क्या है, ये सब मेट्रोस पे क्या है, लैंड कम है, इस लिमिटेड है एंड द पॉपुलेशन इज ह्यूज, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। सो दैट दिस इज द रीजन। सो मोस्ट पीपल लिव इन फ्लैट्स इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे रहते हैं। ओके बहुत सारे लोग, क्योंकि यहाँ लैंड का कमी है एंड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इस क्या है, नेक्स्ट जो प्रीवियस पेज पे हम लोग पढ़े थे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का इमेज भी है। सो दैट इन दैट बिल्डिंग दे लिव and people live in different types of houses depending on location and climate of that place. क्या डिपेंड करता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है कि पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस एंड इट डिपेंड ऑन लोकेशन। एक लोकेशन भी डिपेंड करता है किस जगह पे वो लोग रहते हैं एंड जोग्राफिकल, दिस मीन द जियोग्राफिकल लोकेशन एंड क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस, उस जगह का क्लाइमेट हिसाब से भी उन लोग का हाउस बनते हैं। ओके देन एंड कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो अर्ली मैन लिव्ड इन कैब्स, हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़े हैं, पहले जो चैप्टर्स में कुछ अर्ली मैन के बारे में पढ़े हैं। तो अर्ली मैन लिव्स इन कैब्स, वो लोग कहाँ रहते थे, कैब्स पे रहते थे। दे हैव नो हाउस एट द स्टार्टिंग पॉइंट, पहले उन लोग का घर नहीं था। सो दैट दो लिव इन कैब्स एंड ही एट द फ्लैश ऑफ एनिमल्स और फ्रूट्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स। क्या खाता था, फ्लैश ऑफ एनिमल्स खाता था, फ्रूट्स रूट्स ये सब प्लांट्स का जो भी मिल जाता था वही खाता था। एट द टाइम ही वॉज नॉन एज ए हंटर एंड फूड गैदरर। ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द हंटर एंड द फूड गैदरर, एट द टाइम दे वर नॉन एज द हंटर एंड फूड गैदरर। बट आफ्टर दे स्टार्टेड एग्रीकल्चर स्टार्टिंग होने के बाद, स्टार्ट करने के बाद वो लोग क्या करें, एक सेटल लाइफ हुआ एंड दे बिकम ए फूड प्रोड्यूसर। वो एक फूड प्रोड्यूसर बन गया। जब वो एक फूड प्रोड्यूसर बना, स्टार्टेड लिविंग इन ए स्मॉल हट्स क्लोज टू हिज क्रॉप्स। उसके जो क्रॉप्स होता था एग्रीकल्चर जहाँ लैंड पे, उसके साइड में क्या उसके पास में स्टार्टेड लिविंग इन ए स्मॉल हट्स क्लोज टू हिज क्रॉप्स। उस जगह पे ही रहना स्टार्ट कर दिया। बट घर कैसा था उसका, स्मॉल हट्स था। इवन नाउ अभी भी आप लोग के गांव एरिया में देख पाओगे ऐसे घर, ऐसे जो हाउसेस होते हैं, हट्स होते हैं ये सब। एंड इवन नाउ मैनी पीपल लिव इन हट्स इन विलेजेस। ऐसे हट्स आप लोग को मिल जाएगा गांव में। आप लोग देखना है, आप जो भी नहीं देखे होंगे हट्स कैसे होता है, एक आइडिया आपको मिल जाएगा। एंड द हट्स आर मेड ऑफ बम्बू, स्ट्रॉ, ड्राइड लीव्स एंड मॉट। ये सब मटेरियल से बनता है। आपको याद करना है कि मटेरियल यहाँ हट्स कैसे बनता है उसका मटेरियल दिया है। देन कच्चा घर जो बोलते हैं उससे क्या होता है, देन अदर्स जो बिल्डिंग्स होते हैं उसका मटेरियल क्या होता है, दैट इज एंड यू आर गोइंग टू डिस्कस हियर। द हट्स आर मेड ऑफ बम्बू, स्ट्रॉ, ड्राइड लीव्स एंड मॉट। ये सब मटेरियल से बनता है हट। दे आर ऑल्सो नॉन एज कच्चा हाउस। These are known as kacha house or the temporary house. And here one word comes, that is temporary house. You have to remember about the what is a temporary house. Temporary house means ये temporary है, not permanent. So that opposite क्या होगा इसका, और एक जो word आएगा नेक्स्ट टाइप का हाउस जो है वो एक परमानेंट हाउस होगा। ओके उसके बारे में नेक्स्ट वर्ग में डिस्कशन करेंगे। एट दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। इसको क्यों टेम्परेरी हाउस बोलते हैं, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। दीज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे स्टार्ट लीकिंग इन द रेनी सीजन। रेनी सीजन पे ज़्यादा पानी गिरता है तो क्या होता है, इसमें लीक होता है, घर पे छत पे गिर होता है। इसका कोई छत नहीं होता है। लीव्स और ड्राई लीव्स इससे बना रहता है, स्ट्रॉ से बना रहता है, बम्बू स्ट्रॉ, ड्राई लीव्स से छत रहता है उसका। सो दैट इट लीक्स, स्टार्ट लीकिंग इन द रेनी सीजन। स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन ऑल्सो डैमेज दैट। उसको क्या करता है, डैमेज करता है, इस सबको उड़ा के ले जाता है। वो सब दैट कैन ब्लो, can be blown away, so that this is not a permanent house, this is known as temporary house। क्यों इसको जो कच्चा घर होता है या फिर कच्चा हाउसेस होता है या फिर विलेज
का जो हॉर्स होता है उसको टेम्परेरी हाउस क्यों बोलते हैं? इट इज़ नॉट परमानेंट, इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू स्टैंड अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग विंड। स्ट्रॉन्ग विंड्स के अगेंस्ट ये खड़ा नहीं हो सकता, इसमें उसको उड़ा के भी ले जा सकता है। उसका जो छत रहता है, स्ट्रॉ बम्बू, ये सबको उड़ा जाता है, या फिर डैमेज हो जाता है। सो एंड ऑल्सो लीकेज होता है रेनी सीजन पे, तो दीज आर नॉन एज द टेम्परेरी हाउस। नेक्स्ट, हॉट्स कैन ऑल्सो बी फाउंड इन स्लम्स इन सिटीज। ऐसे नहीं कि खाली गांव एरिया पे हट्स रहते हैं, बट यू कैन, दीज आर द पिक्चर्स, दीज आर द हट्स और द स्लम एरिया, एंड दिस इज द मेन metro regions where the buildings, multi-story buildings are there, and these are the slum area। slum area क्या होता है? कुछ पर्सन कौन रहता है स्लम एरिया पे? द पीपल हु आर नॉट एफोर्डेबल टू लिव इन दिस एरिया। यहाँ रहने के लिए जो लोग सक्षम नहीं है, वो लोग क्या रहते हैं? जिनका इनकम सोर्स कम है, ज़्यादा इनकम नहीं है, सो स्लम पे रहते हैं। ओके, बहुत सारा लोग गांव एरिया से भी बाहर से आ जाते हैं मेट्रो पे काम करने के लिए या बड़े सिटी में काम करने के लिए, बट इनका इनकम सोर्स उतना ज़्यादा नहीं होता है कि वहाँ जाके वो लोग एफोर्ड हो कर सकें वहाँ रहने के लिए, सो दैट दे लिव इन द स्लम एरिया। सो हाउ इट इज़, दे लिव, हॉट्स कैन बी फाउंड इन स्लम्स इन सिटीज। दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स, टीन एंड पॉलीथीन सेट्स। ठीक है, गांव एरिया का हॉट्स कैसे बनता था? मटेरियल क्या था? बम्बू, स्ट्रॉ एंड ड्राइड लीव्स एंड मॉड से बनता था। बट यहाँ का जो सिटी का जो स्लम एरिया है, यहाँ का हॉट्स कैसे बन रहा है? एंड व्हिच आर द मटेरियल्स? दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स, टीन एंड पॉलीथीन सेट्स। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस लाइन। एंड द डेज मोस्ट विलेजर्स लिव इन पक्का हाउसेस। आजकल गांव में भी डेवलपमेंट हो चुका है, लोगों का इनकम सोर्स बढ़ चुका है, सो दैट दे लिव इन पक्का हाउसेस। और पक्का हाउसेस इज नॉन एज द परमानेंट हाउस। यहाँ क्या था? कच्चा हाउसेस इज नॉन एज द टेम्परेरी हाउस। कच्चा हाउस को क्या बोलते हैं? टेम्परेरी हाउस बोलते हैं। यार इसका मटेरियल क्या है? ये सब मटेरियल है यूज्ड। एंड यहाँ पक्का हाउस क्या होता है? परमानेंट हाउस होता है। ओके, पक्का हाउस इज नॉन एज परमानेंट हाउस। एंड व्हिच आर द मटेरियल यूज? दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स, मार्बल, स्टोन, सीमेंट एंड टिम्बर। दीज आर द मटेरियल यूज in a permanent house, or you must say it पक्का house. These are the difference. You have to give the differentiate between the temporary house and permanent house. The question may arise here. What is your haveli? What is haveli? A very big village house is called haveli. Very big. It is big in size. Very big in size. गाँव में जो बहुत बड़ा घर रहता है, very big in size. This is very big in size, and this is known as haveli. So this is known as the haveli. Okay, so you have to remember this word haveli. And इस चैप्टर इस पेज पे इम्पोर्टेंट क्या था? वर्ड्स टेम्परेरी हाउस एंड द परमानेंट हाउस, एंड यू हैव टू रिमेंबर द थिंग्स। माउंटेन्स जनरली रिसीव हेवी रेन एंड स्नोफॉल। माउंटेन एरिया पे क्या होता है? जनरली रिसीव हेवी रेनफॉल होता है, स्नोफॉल भी होता है। एंड वेयर इट इज स्पेशली इन द हाउसेस इन जम्मू कश्मीर, इट इज कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर मेड विथ स्लोपिंग roofs so that the rainwater and snow can slide down easily. So this is the reason. And in hilly areas, most houses have fireplaces to burn logs and keep the house warm. सो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। माउंटेन एरिया पे किस टाइप का हाउस रहते हैं माउंटेन जनरली, और क्यों करते हैं ऐसे हाउस? क्योंकि माउंटेन एरिया पे हेवी रेनफॉल होता है, इट इज हेवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल भी होता है। तो किस जगह पे स्नोफॉल होता है? लाइक द हाउसेस इन जम्मू कश्मीर, इट भी कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जो नॉर्थन रीजन है इंडिया के, और मेड ऑफ स्लोपिंग रोप्स। ये जो रोप्स है स्लोपिंग है, दिज आर स्लोपिंग, दिज आर नॉन एज द स्लोपिंग रोप्स। ओके, ये स्लोप हुआ है, स्लोपिंग हुआ है। वहाँ पर इस जगह पे क्या होता है? जो भी रेनफॉल होता है या फिर स्नोफॉल होता है, इट विल फॉल डाउन। देखो स्नोफॉल हुआ है, ये नीचे गिरा है, दिज आर द स्नोफॉल्स, इट विल स्लाइड। And why these are in sloping? So that the rain water and the snow can slide down easily. ये जो slide हो जाता है easily, नीचे गिर जाता है, fall down or slide down easily. Okay, so that it is very important. Wherefore they make the sloping roofs. And also as they feel cold, बहुत ज़्यादा ठंडी होता है यहाँ, तो क्या करते हैं वो लोग? इन हिल एरियाज मोस्ट हाउसेस है फायर प्लेसेस रहता है जिस जगह पे टू बर्न लॉग्स, इट कीप्स द हाउस वार्म। घर को बहुत वार्म रखने के लिए वो लोग क्या करते हैं? बहुत बड़ा लकड़ी को जो लॉग्स बोलते हैं उसको जला के रखते हैं। ओके, दे
fireplaces to burn logs to keep the house warm. Then second type of house is the stilt house. What is the stilt house? And think about the stilt house. This is the stilt house. Okay, this is stilt house. So what difference है you can pull हमारे घर से और ये जो हाउस होता है इसके इसमें क्या डिफरेंट है? दिस इज एबव द लैंड. ये जो ज़मीन है लैंड से कम 5 से 10 फीट का एबव है. ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई है. एंड व्हाई दे मेक दिस टाइप ऑफ हाउस? क्यों वो लोग ज़मीन से इतना ऊपर घर बनाते हैं? व्हाई दे मेक देयर हाउस शो हाई अप इन द अप फ्रॉम द लैंड. लैंड से क्यों ऊपर बनाते हैं ये देखेंगे. स्टिल्ट हाउसेस आर मेड इन दोज एरियाज वेयर फ्लड आर वेरी कॉमन. जहाँ बाढ़ आते हैं. ओके, ठीक है, तो नदी समुद्र के जो साइड में रहते हैं लोग, वो लोग इस टाइप का घर बनाएंगे. और फिर ज़्यादा रेन होता है जहाँ. ओके, in common, and that is Meghalaya and Assam. So that where you could find the stilt houses. Stilt houses could be found in Meghalaya and Assam. मेघालय आसाम के लोग इस टाइप का हाउस बनाते हैं क्योंकि वहाँ बाढ़ ज़्यादा आते हैं, फ्लड अफेक्टेड एरिया, फ्लड प्रोन एरिया है. सो दैट द स्टिल्ट हाउसेस आर मेड हियर इन दिस एरिया रीजन्स. द वाटर ड्रेन्स एंड वेपर दे क्यों ऐसे बनाते हैं? The water drains away easily through the stilts without damaging the house. ये जो स्टिल्ट है इससे क्या होता है, जो अगर पानी में चढ़ गया तो ये नीचे आ जाता है. विदाउट डैमेजिंग द हाउस द ड्रेन्स अवे. द वाटर ड्रेन्स अवे इजीली थ्रू द स्टिल्ट. ये जो स्टिल्ट है इससे थ्रू निकल जाता है. ओके, इट डैमेज विदाउट स्टिल्ट विदाउट डैमेजिंग द हाउस. हाउस को डैमेज भी नहीं होते. सो दिस इज द रीजन वेपर द पीपल लिविंग इन मेघालय एंड आसाम दे मेड द स्टिल्ट हाउसेस और दे लिव इन स्टिल्ट हाउसेस. ओके, स्टिल्ट हाउस और लोग का क्या स्पेशल है इसको भी आपको याद करना है. दैट इज स्टिल्ट हाउस एज ए लेडर. उनका एक लेडर रहता है, लेडर लगा के रखते हैं. वेपर दे मेक यूज ए लेडर, एक लेडर टू क्लाइम अप. क्योंकि ये बहुत हाइट है तो इसको चढ़ेंगे कैसे, ऊपर जाएंगे कैसे? वाओ, दे विल गो टू देयर होम so that to their houses, so that they use a ladder to climb up. It is removed and kept inside the house at night. रात पे क्या करते हैं, जो लेडर है उसको लेके दे कीप इट इनसाइड द हाउस, घर के अंदर रख देते हैं. Why for? To make night for safety from thieves and wild animals. क्योंकि अगर ये लेडर यहाँ रहेगा तो वाइल्ड एनिमल्स और थीव्स भी चढ़ के ऊपर चले जाएंगे. they could climb up to their homes, so that they remove it and keep the ladder inside the home. रात में लोग लेडर को इनसाइड रखते हैं. ओके, next type of house and we'll study here is in Jammu and Kerala. जम्मू कश्मीर एरिया पे होता है या फिर स्पेशली इट इज़ इन कश्मीर, नॉट जम्मू. हियर इट इज दिस कश्मीर. इन कश्मीर एंड केरल मेनी पीपल लिव इन हाउस बोट्स एंड व्हिच कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन द लेक्स. ओके, तो यहाँ क्यों ये लोग रहते हैं ऐसे इस जगह पे और क्या फ़ायदा है इसका? हाउस बोट पे रहते हैं. एक बोट है, बोट पे घर बना है. सो दिस इज नॉन एज द हाउस बोट. दिस इज द हाउस बोट. दिस इज ए बोट. It be one or two boats are joined together and the house is built here. एक घर बना गया है इसमें. The house is made here. So this is known as the house boat. And what the benefit? And which can be moved from one place to another on the lake. Lake पे क्या एक जगह से एक जगह वो लोग मूव कर सकते हैं. This is the benefit. Okay. This is known as this could be very enjoyable. And our house is at a permanent place. एक ही जगह पे हमारा घर रहता है but it is very enjoyable. ये लोग क्या करते हैं, उनका घर एक जगह से एक जगह वो लोग लेक्स पे, झील पे वो लोग घूमते रहते हैं. सो इट मस्ट बी एंजॉयबल. ओके, एंड कम टू द नेक्स्ट पेज. देन nomads do not live permanently at one place. They live in caravans and which can be moved around by horse, bullock or a van. So what is nomad? And the early man is known as the nomad. Early men were known as the nomad. So what is nomad? Without house, they move from one place to another place. Not permanent house. उनका कोई permanent house नहीं होता है. They move from one place to another place. So now also there are so many people though maintain the nomad. They are nomads
which are, who are known as the nomads. They do not live permanently at one place. एक जगह परमानेंट पे वो लोग नहीं रहते हैं. So that they have no permanent house and they live in caravans. Caravans means car. What is car? It is this is the car, and with wheels means, so how they caravans, and which can be moved around by horse. जो हॉर्स से भी वो लोग मूव कर सकते हैं या फिर बुलक से जाते थे पहले, बट नाउ इट इज दे मूव बाय वैन. ये वैन से मूव करते हैं ये हाउस. ओके, दिस इज देयर हाउस. द मेड द van as their house. They use the van as their house. It be a minibus or a small bus, and use it as their house. Many people go on holidays in caravans, and which can be parked anywhere. बहुत सारा लोग क्या करते हैं, इस जो वैन्स है, कार्स हैं, इस टाइप का बसेस को यूज करते हैं. ये हॉलीडेज इन कारावेंस पे जाते हैं क्योंकि ये इट कैन बी पार्क एनीवेयर, किसी जगह पे आप पार्क कर सकते हैं और एज ए हाउस उसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. एंड दिस इज द रीजन एंड इन एरियाज ऑफ हॉट क्लाइमेट. हॉट क्लाइमेट रीजन पे क्या करते हैं, लाइक राजस्थान. हॉट क्लाइमेट क्या होता है, स्पेशली इन राजस्थान, इन इंडिया. लाइक राजस्थान, द हाउसेस आर बिल्ड विद हाई फ्लैट रोफ्स. यहाँ क्या होता है, हाई एंड फ्लैट रोफ्स टू कीप द हाउस कूल. इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है आपका. व्हाई दे मेड द फ्लैट and how they made the house, and what they do to make their house cool in hot climate. hot climate पे लोग अपना हाउस को कूल रखने के लिए कैसे क्या करते हैं, so that the houses are built with high flat roofs. उनका जो रूफ्स रहते हैं बहुत हाई रहते हैं, हाई पे रहते हैं, हाइट पे ही करते हैं और फ्लैट रहते हैं. ठीक है, फ्लैट रूफ्स टू कीप द हाउस कूल. एंड ऑल्सो क्या है और कुछ, द रूम्स आर मेड अराउंड एन ओपन वरांडा. ओपन वरांडा पे ही रूम बनाया जाता है. व्हाई, टू अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ एयर एंड टू कीप द हीट आउट. जो एयर का फ्री मूवमेंट होने के लिए, और उनका बहुत सारा वरांडा, फ्री ओपन वरांडा रहते हैं, प्लस विंडोज डोर्स भी बहुत ज़्यादा रखते हैं, यूज करते हैं टू फ्री मूवमेंट ऑफ द एयर एंड टू कीप द हीट आउट, जिससे कि जो इनसाइड हीट है वो आउट हो जाएगा. ओके, दिस इज द रीजन एंड वेयर दे लिव इन हाई एंड फ्लैट रूफ्स. ये भी एक अलग टाइप का डिफरेंट हुआ क्योंकि यहाँ के एक स्लोपिंग रूफ्स के बारे में देखे थे हम लोग. देन ऑल्सो स्टील हाउस भी हो गया. सो ऑल द थिंग्स, स्लोपिंग रूफ था और स्टील हाउस भी था, बट देन दिस इज द फ्लैट रूफ्स. ओके, एंड देन विल डिस्कस अबाउट द मटेरियल यूज फॉर बिल्डिंग हाउसेस. जो हाउस बिल्डिंग हम लोग बिल्ड करते हैं या फिर बनाते हैं, उसके लिए जो मटेरियल यूज होता है वो क्यों डिफरेंट मटेरियल यूज करते हैं, हर कोई एक ही टाइप का मटेरियल यूज नहीं करते. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसका क्या रीजन यूज फॉर बिल्डिंग हाउसेस. मोस्ट पीपल बिल्ड हाउसेस विथ मटेरियल दैट आर अवेलेबल लोकली. उनके लोकेलिटी पे जो भी मटेरियल अवेलेबल रहते हैं, मिलते हैं, उसी से वो लोग घर बनाते हैं. ओके, और पीपल यूज बम्बू ग्रास, पीपल यूज बम्बू ग्रास क्ले फॉर मेकिंग हॉट्स इन विलेज एरिया पे क्या अवेलेबल रहते हैं, बम्बू मिलता है, ग्रास है, क्ले है, सो दैट दे मेक देयर हाउस, और हॉट्स दैट इज नॉन एज द हॉट्स, एंड दे यूज दिस मटेरियल टू मेक देयर हॉट. सम पीपल ऑल्सो यूज और टीन रूफ्स, टीन का रूफ्स यूज करते हैं, और एजबेस्ट भी यूज करते हैं, एजबेस्ट सीट जो होता है, एंड दे कैनॉट बाय कॉस्टली एज दे कैनॉट बाय कॉस्टली मटेरियल. ये सब क्यों यूज करते हैं, एज दे कैन नॉट बाय कॉस्टली मटेरियल. लाइक अदर पीपल, सिटी पे टाउन पे जो लोग रहते हैं वो कॉस्टली मटेरियल यूज करते हैं, बट ये लोग क्यों नहीं करते, दे आर नॉट अफोर्डेबल, दे आर नॉट एबल टू बाय कॉस्टली मटेरियल, सो दैट दे मेक. सो यहाँ एक जो मटेरियल यूज होता है उसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, मनी. पैसा ही सबसे बड़ा चीज़ होता है. उनके पास अगर पैसा है, मनी है, तो एक अच्छा घर भी बना सकते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू बाय द कॉस्टली मटेरियल. सो दिस इज, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट. And in cities, most people use materials like glass, steel, cement, wood, stone, marble, bricks, etc. to build strong house. These are the material used to make a strong house. It is the things material or they use for the permanent house, and these are the material used for the temporary house. ये temporary house का material है और ये permanent house का material है. ओके, ये विलेज एरिया से रिलेटेड है और ये सिटीज और टाउन एरिया से रिलेटेड है. देन इन फॉरेस्ट एरिया पे क्या होता है, इन फॉरेस्ट वुड इज
इजीली अवेलेबल, वुड से क्या होता है, इजीली अवेलेबल है वहाँ. सो पीपल मेक वुडन हाउस, so that they make wooden house, and known as wooden house are known as the log cabins. These are known as log cabins. And in cold climates, also in cold climates also people use a lot of wood, बहुत सारा वुड यूज़ करते हैं तो, एंड इट कीप्स द हाउस वार्म इन चिली वेदर. द ठंडी मौसम पे वो लोग क्या करते हैं, वुड्स को जला के रखते हैं, उसको दे बर्न द वुड्स टू मेक द हाउस वार्म. ओके, नेक्स्ट, हाउसेस ऑन सी शोर्स. सी शोर जो समुद्र के तट एरिया या साइट में रहते हैं, सी शोर पे रहते हैं, और मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग वाटरप्रूफ मटेरियल. व्हाई दे यूज स्ट्रॉन्ग वाटरप्रूफ मटेरियल, दैट इज द रीजन इज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग सॉल्टी विंड्स. वहाँ जो स्ट्रॉन्ग विंड होता है या फिर सॉल्टी विंड्स होता है उसमें नमक रहता है, सो इससे मेटल खराब हो सकते हैं. सो दैट they use this type of strong waterproof material. They use the waterproof material to make the house safe from the salty winds and also from the strong wind. Okay, and normally these houses have big glasses windows. Why they make the big glass windows and to glass windows and to allow the cool breeze to allow the cool breeze to enter and to keep storms out. क्योंकि समुद्र जो सी शोर एरिया पे होता है, क्लाइमेट कभी भी ख़राब हो जाता है, वह साइक्लोन होता है. सो दैट टू कीप द स्टॉर्म आउट, स्टॉर्म को आउट होने के लिए या फिर बाहर निकल जाए हवा जो होता है, जो इनसाइड आता है, स्ट्रॉन्ग विंड ऑलवेज इट एनी टाइम इट मे कम, and whenever a cyclone starts then the strong wind start blowing there. So to make this strong wind out, they use the big glass windows to allow the cool breeze and also to make the strong wind out. Okay, without damaging the house. So the type of house a person build also depend on money. यहाँ भी बताया था मैं कि डिस्कशन किए थे यहाँ कि what they use the material. The most important thing is it depend on the money. They can be spent, that can be spent. जो money है वो important होता है, that can be spent. And a common people uses cheaper material. जो common people होते हैं जिनका इनकम कम है या फिर लोअर इनकम है, वो क्या करते हैं, चीपर मटेरियल यूज करते हैं. एंड बिल्ड ए स्मॉल हाउस, एक छोटा सा घर बनाते हैं. बट इन कंपैरिजन टू देम ए रिच पर्सन यूजेस कॉस्टली मटेरियल टू बिग हाउस. क्योंकि उसके पास मनी का प्रॉब्लम है, देयर इज नो मनी मैटर, देयर इज नो मनी प्रॉब्लम. सो दैट द ए रिच पर्सन यूजेस कॉस्टली मटेरियल टू बिल्ड द बिग हाउसेस. ओके, सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये चैप्टर कि डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस पे हम लोग क्यों रहते हैं, या जो लोकेशन होता है लोकेशन हिसाब से, एंड देन ऑल्सो द क्लाइमेट हिसाब से, and then also the main point is here also the money matter. It depend, the money is most important thing, and also the availability of material in that locality. उस लोकेलिटी पे जो मटेरियल अवेलेबल होते हैं उससे वो लोग घर बनाते हैं अपना. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट अपडेट्स. थैंक यू once again.